गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होपफुली कल का जो सम था दैट वाज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चीजें आपने मैनेज की। नंबर वन, जो नए पार्टनर है उन्होंने अपना कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखा। नंबर टू, जो आउटगोइंग पार्टनर है हमने उसको पे कर दिया। नंबर थ्री, वी मेंटेन्ड कैश टू अ स्पेसिफिक नंबर। एंड अप्रोच ऑल्सो आप सबको क्लियर है, होपफुली नो प्रॉब्लम। इट्स अ टेम्पलेट, एज आई टोल्ड यू, you just keep adding new things and you are into new situations. Now, आज जो हम सम करने वाले हैं वो थोड़ा डिसीविंग है, क्योंकि जो लोग समझे बिना सिर्फ कुछ चीजें याद रख करके सम करते हैं वो आज के समय फंस जाएंगे। जो लोग समझ के करते हैं उनके लिए बहुत आसान सम था। ठीक है, वो कहाँ पर आप फंसोगे वो आज हम देखेंगे, वो आज समझेंगे। तो अपना कैलकुलेटर, अपना पीडीएफ तैयार रखिए। आपका कल का जो होमवर्क सम था वही इनफैक्ट सम आज मैं करने वाला हूँ। इनफैक्ट कल के होमवर्क में ये था। तो जो दो सम होमवर्क में थे उसमें से एक सम जो एक्सपेरिमेंटल था वो मैं कर रहा हूँ। तो एवरीवन विथ मी। कैरेक्टर्स के नाम है पी, क्यू और आर। सो दैट्स व्हाट वी आर प्लेइंग विद। और बैलेंस शीट आपका 31 मार्च 17 है। तो शुरू करते हैं सम से। द सम गोज लाइक दिस: पी क्यू आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4-3-3. P retires on 31st March 17. Balance sheet is as under. The first thing that you watch out in balance sheet is goodwill, and you can see goodwill. So first of all, let's remove it. So it's goodwill 1000. Yes. Goodwill asset debit बाहर करना है तो क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आंसर इज पी क्यू आर इन देयर ओल्ड रेशियो 433, दैट इज 400 300 300 in PQR. It's to goodwill 400 300 300. Goodwill asset debit हमने किया, credit opposite side minus. In old books it was appearing, now it is no more appearing. अब goodwill लिया है, goodwill खत्म करते हैं. Following terms of retirement were decided in partnership agreement and amongst the partner. First, goodwill of the firm is valued at 7,000. मगर उसके पहले न्यू रेशियो चाहिए हमें. Q and R will bring necessary cash in equal proportion in such a manner so as to pay E to be paid in full, and 2000 was working capital stock. See, कुछ बोला नहीं है पूरे सम में, तो we'll assume that they'll continue in their old ratio. ये ध्यान से देखना। किसी ने मुझे ये सवाल पूछा, सब में ओल्ड रेशियो नहीं दिया था सर, हाउ डू यू फाइंड आउट ओल्ड रेशियो इफ इट इज नॉट गिवन। ये डस्टर छुट्टा मारूंगा। Getting the idea? How do you find out new ratio? Yes, that is the question. How do you find out old ratio if nothing is given? Equal. Don't ask me such questions. अगर न्यू रेशियो नहीं बोला तो पी क्यू आर के बीच में ओल्ड रेशियो था 433. अब P गया तो Q और R will continue in the same ratio, which is 1:1. So that's your new ratio. Hope that is clear. Considering that your sacrificing ratio is equal to old proportion minus new proportion, PQR 4/10, P/10, 3/10 minus 0, 1/2, 1/2 into 5 into 5. So what I get is 4/10 minus 2/10 minus 2/10. Who is sacrificing P? Who are gaining Q and R? What's their gaining ratio? 2:2, or you can say 1:1. What's your proportion? 2/10, 2/10. When do you use ratio when individual goodwill is given? When do you use proportion when firm's goodwill is given? You are given firm's goodwill. So into 7,000, 7,000, 7,000. What I get is 7 4s are 2,800. 2,800. Sorry. 7 4s are 1,400. 1,400.
2s are 28, 7 2s are 14, 7 2s are 14. Yeah. Who is supposed to pay? One who gains. Who are gaining? Q and R. Did they pay? No. So it's Q's capital account debit, R's capital account debit to P's capital. It is 1400, 1400 and 2800. Hope things are clear, everyone. In Q and R, to P's capital, it's 1400 in Q and R, sorry, 1400, and in P it is by Q and R's capital. In P it is 2800. Hope this entire goodwill thing is clear, and hopefully everyone is convinced that when it comes to retirement, goodwill is always a cakewalk. आगे बढ़ते हैं. Value of land and building 7,000, furniture 2,000 is decided. Land and building 6,000 है. और फर्नीचर जो है वो 3,000 है. लैंड एंड बिल्डिंग 6 का हो गया है 7 बड़ा. एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग असेट डेबिट, बढ़ाने के लिए और डेबिट. सामने कैसा लगा? अच्छा लगा. अच्छे को कहते हैं गेन. गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड वेयर इट इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन. सो लैंड एंड बिल्डिंग असेट डेबिट हमने किया और डेबिट, सो इट विल बी एडेड. और रीवैल्यूएशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग. As far as furniture is concerned, 3,000 है. ओके, दो इफेक्ट हो गया. फर्नीचर 3,000 है, उसका करना है 2,000 कम करना है. फर्नीचर एसेट डेबिट कम करना है तो क्रेडिट. कैसा लगा? बुरा लगा. बुरे को कहते हैं लॉस. लॉसेस आर टू बी डेबिटेड वेयर इट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन. इन रीवैल्यूएशन इट इज टू फर्नीचर. And furniture asset debit हमने किया credit opposite side minus and left out with 2,000 the figure that you wanted. आगे बढ़ते हैं. Stock is overvalued by 10%. Stock दिख रहा है 6,600. ना भाई ये बच्चों वाली बात लगनी चाहिए अब आपको. Don't get fooled. Stock is overvalued by 10%. So if its actual value is 100, then its overvalued amount is 110. If overvalued amount is 6,600, then actual value is 6,000. This is done by us n number of times, so should not be a problem. 6,600 है, होना चाहिए 6,000. कम करना है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट. कैसा लगा? बुरा. बुरे को कहते हैं लॉस. लॉसेस आर टू बी डेबिटेड. 600. In revaluation, it's to stock. And stock asset debit हमने किया credit opposite side minus. आगे बढ़ते हैं. 5,000 is to be paid to E immediately. अगर जो P हमारा रिटायर हो रहा है उसको 5,000 immediately पे करना है तो एंट्री पास कर सकते हैं. इट इज पीज कैपिटल टू कैश. 5,000 5,000 इन पीज कैपिटल इट इज टू कैश. इफ यू कैन अंडरस्टैंड 5 अभी का अभी भरा, यानी बाकी अब जो बचेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन और कैश में बाय पीज कैपिटल 5,000. फिर आगे बोला है दैट and balance to be transferred to his loan account. Okay, fine. फिर बोला है जो Q और R है, Q and R will bring necessary cash in equal proportion in such a manner that P is to be paid his due fully. Which due they are talking about? This 5,000.
नॉट द लोन अमाउंट, लोन तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये 5,000 फुल्ली पे कर सकते हैं, ये 5,000 कौन लाएगा, तो क्यू और आर, एंड 2,000 रिमेन्स एज वर्किंग कैपिटल इन कैश। अंदर देखो कैश कितना है 400, मगर हमें रखना है 2,000, तो कितना कम पड़ रहा है, तो 1,600, वो भी कौन लाएगा, क्यू और आर। कैसे लाएगा, वही तो लर्निंग पॉइंट है, तो उसको एंड में देखते हैं। जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट होता है वैसे भी हम एंड में ही ले जाते हैं, तो एंड में ही रखते हैं। अभी फिलहाल बात नहीं करते, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। आई विल रिमूव दिस एंड आई गो टू स्टेप 2, दैट इज बैलेंस शीट। गुडविल हो गया, लैंड हो गया, फ्री होल्ड असेट 3,000, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर 7,000, कैश 400 हो गया, कैपिटल 8, 5 और 2, जनरल रिजर्व 2,000 क्या करेंगे, ट्रांसफर। जनरल रिजर्व है लायबिलिटी क्रेडिट, टू ट्रांसफर इट डेबिट, वेर इट इज ट्रांसफर्ड, तो पी क्यू आर 800, 600, 600। रिजर्व क्रेडिट हमने किया, डेबिट आमने सामने कैंसिल, अकाउंट इज क्लोज्ड। पुरानी बैलेंस शीट में था, नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा, जिसका था उसके पास, बाय जनरल रिजर्व 800, 600, 600। क्रेडिटर 8,000, एंड आखिरी में बिल्स पेबल 2,000। ऑल डन। स्टेप 1 एडजस्टमेंट डन, स्टेप 2 बैलेंस शीट डन, स्टेप 3 एनालिसिस। रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं, एट द ग्रेटर साइड, ऑन द लाइटर साइड, find out the difference. Debit side is greater, so it's your loss. Revaluation debit to transfer it credit 600 रुपए, where it is transferred PQR, तो 6 4s are 24, 6 3s are 18, तो in PQR it's 2 revaluation 240, 180, 180, and in revaluation it is by capital, and with that this account is closed. अब चलते हैं कैपिटल पर। एज वी ऑलवेज डू, व्हेनेवर रिटायरमेंट है, डेथ है, जो बाहर जा रहा है उसको पहले ले लेंगे। बाहर कौन जा रहा है, पी जा रहा है, तो कैलकुलेटर का उपयोग कर ही लेते हैं, गलत नहीं जाना है। We have 8,000 plus 2,800 plus 800, that is 11,600. Over here 11,600 minus 5,400 minus 240, that is 5,960। क्या करेंगे इसको, तो लोन में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटल क्रेडिट टू ट्रांसफर इट डेबिट, वेयर इट इज ट्रांसफर्ड, तो लोन, इन कैपिटल टू लोन। अगले सर उन्होंने बोला है बैलेंस अमाउंट वाज टू बी पेड बाय क्यूएनआर, नहीं, जो ये करना है ना पे, वो क्यूएनआर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे उसकी ही बात करेंगे 2 मिनट के बाद, वरना तो उन्होंने क्लियरली बताया है एडजस्टमेंट 3 में, E 5,000 is to be paid to E immediately and balance to be transferred to his loan account। यानी P को 5,000 immediately पे करेंगे और जो बैलेंस बचता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहानी क्लियर है? और वो कर दिया, यहाँ पर आ गया लोन ऑफ P बाय 960। अब बचे Q और R और करना है उनका कैपिटल एडजस्टमेंट।
तो ये हटा देते हैं, और जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट होता है तो फॉर्मेट तो अपना वही है, क्यू आर व्हाट योर कैपिटल इज एंड व्हाट योर कैपिटल शुड बी। जैसे इतना किया, हम इस कहां से मिलेगा, तो आंसर इज कैपिटल अकाउंट से। तो we will add the greater side, we'll take it on the lighter side, we'll find out the difference, is मिल जाएगा। और फिर P को पे करने के लिए 5000 लाना है और कैश मेंटेन करने के लिए 1600 लाना है। तो सिंपल है ना, वो जोड़ देंगे, यानी ये तो कल वाला ही सम हुआ ना, इनफैक्ट सैटरडे वाला। तो आंसर इज नो, ये सैटरडे वाला सम नहीं है। इनफैक्ट आंसर इज ये कैपिटल एडजस्टमेंट ही नहीं है। आप बोलोगे क्या बात करते हो सर, इतना क्लियरली तो कैपिटल एडजस्टमेंट दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, अंदर देखो, अंदर क्या बोला है कि Q and R will bring necessary cash in equal proportion in such a manner that P is to be paid his dues fully and 2000 remains as working capital। Q and R पैसा लेकर आएंगे, कहीं भी ऐसा लिखा है Q and R अपना कैपिटल मेंटेन करेंगे। पूरा सम 2 बार नहीं 10 बार पढ़ना नहीं दिखेगा, सिर्फ ये बोला है दैट जो P को पे करने के लिए 5000 चाहिए वो प्लस कैश मेंटेन करें 400 है, उसका 2000 मेंटेन करना है, यानी 1600 लाना है वो, ये दोनों मिलाकर 6600 Q और R लेकर आएंगे इक्वली, यानी 3300 Q लेकर आएगा और R भी 3300 लेकर आएगा। लेकर आने का एंट्री कैश टू कैपिटल, बस इतना ही करना है। इन कैश टू Q's कैपिटल 3300 टू R's कैपिटल 3300, और यहां पर कैपिटल में बाय कैश 3300 3300। टोटल करेंगे 5 + 3 8 8900, 2 + 3 5 5900, 8900 5900। डिफरेंस निकालेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे अपना, तो डिफरेंस में आएगा 8900 माइनस 300 माइनस 1400 माइनस 180, that is 70 20 over here capital account Q and R 7020, and over here 5900 minus 300 minus 1400 minus 180, that is 4020. As far as cash is concerned, 6600 plus 400, that is 7000 7000। ये 5 भरा, बचा कितना exactly दो, what you wanted cash over here 2000। we are at that point wherein we'll cross our fingers and we'll try to find out the totals। it's 7000 plus 2000 plus 6000 plus 10,000 plus 2000 is equal to 27,000। यहाँ पर आ जाओ, it's 7020 plus 4020 plus 5960 plus 10,000, that is 27,000। वो सब फॉर्मेट तब बनता है, या प्रोफोर्मा या फिर टेम्पलेट तब बनता है जब कैपिटल एडजस्टमेंट मांगा है। ये वाले सम में बहुत स्मार्टली कैपिटल एडजस्टमेंट दिया ही नहीं था। दिस इज अ गुड सम, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लाइक मेंटेन भी करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को पे ऑफ भी करना है और कैश भी मेंटेन करना है। आऊ आवे ना तो आऊ खरीद देगा, दैट इज हाउ दे लर्न। इसलिए इन लोगों ने स्मार्टली क्या किया है, पे करना है और मेंटेन करना है।
कैश कैपिटल एडजस्टमेंट बोला ही नहीं है. जस्ट टू चेक आउट हाउ स्मार्ट यू आर एट रीडिंग आउट, हाउ स्मार्ट यू आर एट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. होप दैट इज क्लियर एंड दैट्स व्हाई दिस सम विल ब्रेक मेनी ऑफ अस. होप दैट इज क्लियर. जितने लोग ट्राई किया ना, बहुत सारे लोगों ने वो पूरा फॉर्मेट कर लिया होगा और उनके आंसर भी आ गए होंगे एंड दे मस्ट बी वेरी हैप्पी. यस वी करेक्ट इट because it looked to be a very similar question, but it's similar, it's not same. Things are clear, everyone. Hopefully this is making sense. So here we end the session. Hashtag घर बैठे पढ़ो. Stay home, stay safe, take utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow. Bye bye.